متى ترانا ونراك متى ترانا. رحیم. موضوع کلام ہے تناقض، اور تناقض کی تعریف یہ ہے نقیض کل شیء رفعہ. اچھا، اور نقیض حاصل کرنے کے لیے پچھلے درس میں ہم نے طریقہ بیان کیا کہ نقیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے مفردات کا، دوسرا مرحلہ ہے قضیہ شخصیہ کا، تیسرا مرحلہ ہے محصورات کا، اور چوتھا مرحلہ ہے موجہات کا. مصنف کی گفتگو کا موضوع محصورات اور موجہات ہیں. تو محصورات میں نقیض حاصل کرنے کا طریقہ مصنف نے یہ بتایا ہے کہ آپ کم اور کیف ان دونوں چیزوں میں اختلاف کرو گے تو اختلاف سے حاصل ہونے والا قضیہ اس پہلے قضیے کی نقیض کہلائے گا. تو موجبہ کلیہ کا سالبہ اس لیے کہ وہ موجبہ ہے، اختلاف فی الکیف ہو جائے گا. جزیہ اس لیے کہ وہ کلیہ ہے تو یہ جزیہ ہو جائے گا. اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ. یہ کل کا درس ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آج کے درس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے میں نے یہ تمہید بنائی ہے. آج کا درس جو ہے آغاز کرنے لگے ہیں. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں ایک ایسے قضیے کی جس کے اندر ہم نے آپ کے اس طریقے کے مطابق اختلاف کیا ہے، کم میں بھی اور کیفیت میں بھی. کمیت کیفیت دونوں میں ہم نے اختلاف کیا ہے. اختلاف کرنے کے باوجود جو دوسرا قضیہ ہے یہ پہلے قضیے کی نقیض نہیں بن رہا. تم نے تو طریقہ بتلایا ہے تو پھر نقیض بننی چاہیے نا. پہنچ گئی ہے بات؟ جی مثال دیں. کہتے ہیں مثال یہ ہے زید عالم، یا محصورہ لے کے آتا ہوں. کلو انسان کاتب، ذہن میں قصہ جو ہے وہ بیلقوا کا ہے. ٹھیک ہے؟ کلو انسان کاتب، بیلقوا ہر انسان کاتب ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان ایسا جو شامل نہ ہو اس موجبہ کلیہ میں؟ تو ہر انسان جو ہے بالقوا. اچھا، کلو انسان کاتب موجبہ ہے، کلیہ ہے. اب بعض الانسان لیس بے کاتب، یہ دوسرا قضیہ لے کر آیا ہوں. سالبہ ہے، جزیہ ہے، طریقے کے مطابق نقیض ہونی چاہیے. لیکن یہ دوسرا قضیہ جو ہے بعض الانسان لیس بے کاتب، ذہن میں قصد کیا ہے کہ بھئی بالفعل بعض انسان کاتب نہیں ہے. پہلا قضیہ، دوسرا قضیہ. نقیض کا قانون کیا ہے؟ اگر ایک کاذب ہے تو اس کا کذب وجہ بنے گا دوسرے کے صدق کی. اگر وہ سچا ہے تو اس کا صدق وجہ بنے گا اس کے کذب کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیں ایک دوسرے کی نقیضین، اور نقیضین والے دونوں قضیے ایک ہی وقت میں دونوں نہ صادق ہو سکتے ہیں نہ دونوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے جو طریقہ بتلایا کمیت کیفیت کا اختلاف ہم نے کیا ہے، اس کے باوجود دونوں قضیے صادقہ نکلے ہیں. تو اختلاف تمہارے والا اختلاف ہم نے یہاں کر کے دیکھ لیا ہے، یعنی تمہارے والا طریقہ نقیض نکالنے کا اپلائی کر کے دیکھ لیا ہے. پھر بھی یہ دوسرا قضیہ پہلے کی نقیض نہیں ہے. دلیل یہ ہے نقیض ہوتا تو یہ کاذبہ ہوتا.
چونکہ پہلا ساتھ کا ہے. ٹھیک ہے. کوئی تصویر بن رہی ہے ذہن میں؟ ایسے ہی ہوا میں میں بول رہا ہوں. اچھا کیا جواب ہے ابھی تمہارے پاس؟ مطلب دونوں اگر پیلیا ہوتے تو پھر ایک قاضمہ ہوتا ایک صادقہ ہوتا. اگر دونوں بالقوا میں ہم یہ کہتے بالقوا دوسرے قضیے بالقوا کی قید کے ساتھ ہوتا تو پھر ایک صادقہ ہوتا ایک قاضمہ ہوتا. اچھا قوت اور فعل کا فرق ہے. قوت اور فعل کا فرق ہے. لیکن جو تم نے کہا ہے اختلاف وہ تو موجود ہے نا. جی ہاں لیکن فقط کوئی اختلاف کافی نہیں ہے. وہ اختلاف کافی نہیں ہے. اچھا کیونکہ یہ قضیہ موجہ ہے اس لیے اس میں یعنی وہ بھی تھا. اچھا تیسری چیز تو ضروری ہے ساتھ میں اختلاف ہو. ہے تیسری چیز میں بھی اختلاف ہونا کیا؟ ضروری. کم اور کیف اور جہت. جہت تب آئے گی جب چوتھے مرحلے میں جائیں گے یعنی موجہ میں جائیں گے. میں نے قضیہ جو بولا ہے محصورہ بولا ہے. تو اس مرحلے میں آپ کو صرف نقیض نکالنے کے لیے دو اختلاف چاہیے. اس سے مزید پیچھے آ جائیں گے تو نقیض نکالنے کے لیے صرف ایک اختلاف چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اختلاف تو دونوں ہم نے یہاں نقیض نکالنے کے لیے جو مطلوب ہیں وہ ملحوظ رکھے ہیں نا. پھر یہ دوسرا قضیہ پہلے کی نقیض نہیں ہے. جواد صاحب کے ساتھ اور کون ہے جو اختلاف کرے؟ یہ دو اختلاف کافی نہیں ہے بلکہ اتحاد بھی شرط ہے. اتحاد بھی شرط. ذریعہ باس جواد صاحب کے ساتھ ہے کوئی جو جواد کے ساتھ اختلاف رکھتا ہو؟ توفیق صاحب تو موافق ہو گئے. اچھا چلو قوم کو پھر اتفاق مبارک ہو. جی بابا صحیح. ہم نے صرف روکا آپ کو اس لیے ہے تاکہ جو کہنے لگا ہوں آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں نقش ہو سکے. تو ماحول جو ہے یہ سازگار بنانا بہت ضروری ہے اور بعض دفعہ ماحول بنانے میں 40 سال بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آئیے. ہر قضیہ دوسرے قضیے سے مختلف ہوتا ہے تو مختلف ہونے سے وہ نقیض نہیں بن جاتا. اب ایک قضیے کا آپ نے دوسرا قضیہ نکالا جو دوسرا قضیہ ہے اس پہلے سے مختلف ہے. اس دوسرے مختلف قضیے کو آپ نے کہا ہے کہ یہ اس لفظ اس پہ دھیان دینا ہے. یہ دوسرا قضیہ جو پہلے سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. اس مختلف قضیے کو تم نے نام دیا کیا کہ یہ اس کی نقیض ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اس کی نقیض ہے؟ کہتا ہے اس کی لفظ اس پہ دھیان دو یار. رپیٹ کروں گا مزید تو بحث خراب ہو جائے گی. یہ دوسرا مختلف قضیہ جو کہ یہ پہلے سے اختلاف رکھتا ہے کم اور کیف میں. یہ اختلاف رکھنے والا قضیہ اس کی نقیض ہے. دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ یہ اس کی نقیض ہے کسی اور کی نقیض نہیں ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ 8 چیزوں میں سیم ہے. 8 چیزوں میں یہ اس پہلے کے ساتھ اتحاد رکھتا ہو. اتحاد کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ سیم ہو. یہ قضیہ پہلے قضیے کے ساتھ 8 چیزوں میں اتحاد رکھتا ہو تو جا کے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ قضیہ، کیونکہ اختلاف کرنے سے تو غیر ہو جائے گا نا. جب غیر ہو جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا جو ہے نا یہ لفظ اس کی پہچان کہ یہ اس کی نقیض ہے کسی اور کی نہیں ہے. تو کہتا ہے ضروری ہے یہ والا اس کے ساتھ 8 چیزوں میں اتحاد رکھتا ہو. 8 چیزوں میں یہ قضیہ اس کے ساتھ سیم ہو. ان 8 چیزوں میں سے قوت اور فعل بھی ہے. اگر یہ قضیہ ہے بالفعل، اس کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے وہ فعلیت کا لگایا گیا ہے، اس کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے وہ قوت کا لگایا گیا ہے، تو یہ قضیہ اس قضیے کا سیم نہیں رہے گا. اور مختلف آئے مگر یہ اس کی نقیض کیوں نکلا؟ اس لیے کہ لفظ اس اب یہاں صادق نہیں آئے گا. اس تب صادق آئے گا جب وہ بھی فعلیہ ہو تو یہ بھی فعلیہ ہو. اگر وہ بالکل ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے نا. اگر یہ بالفعل ہے یہ بالقوہ ہے تو آپ اس قضیے کو اس کی نقیض نہیں کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. درمیان میں اس والا تحفظ نہیں رہا ہے.
تو آپ نے ان دونوں کے درمیان وہ لفظ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کیا کہ یہ سیم ہو 8 چیزوں میں متحد ہو پہلے قضیے کے ساتھ. ان 8 چیزوں کو کیا بولتے ہیں؟ وحدات ثمانیہ. توجہ ہے. اچھا تو یہ ریزن ذہن میں آ گیا کہ جہاں ایک قضیہ دوسرے کی نقیض ہوگا تو اس دوسرے قضیے کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ اس کی نقیض ہے ضروری ہے کہ یہ قضیہ اس پہلے کے ساتھ 8 چیزوں میں اتحاد رکھتا ہو تاکہ کہا جا سکے کہ یہ اس کی نقیض. ٹھیک ہے نا بھائی. نقیض کا مطلب ہے تنافی. ٹھیک ہے نا. عداوت تنافی اور عداوت. جب عداوت ہے تو وہ اس کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. یہ صادق بیٹھتا ہے تو یہ کاذب ہو جاتا ہے. وہ کاذب بیٹھتا ہے تو پھر یہ صادق ہو جاتا ہے. تو دونوں صدق کے میں ایک دوسرے کے کیا چل رہے ہیں؟ منافی مخالف چل رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا دشمن ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لفظ اس کی پھر انہوں نے درمیان میں جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہاں پر 8 چیزوں کا اتحاد شرط قرار دیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں دونوں کے اندر سیم رہیں گی تو پھر یہ والا قضیہ اس کے لیے نقیض کہلائے گا ورنہ وہ اس کے لیے نقیض نہیں کہلائے گا. وہ 8 چیزیں کیا ہے گنتی کر دیتے ہیں. جواب گنتی یاد ہے؟ ارشاد. قوت اور فعل میں جو آپ نے فرمایا قوت فعل درمیان میں آئے گا. پہلے نمبر پہ موضوع محمول شرط اضافت قوت و فعل کل جز زمان مکان. 5 اور 3 8 پوری ہو گئی ہیں. ابھی 9 آنے والی ہے. 8 پوری ہو گئی ہیں کیونکہ 5 اور یہ 3 8 ہو گئے. اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے حاشیے میں ملا دشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 چیزیں پوری منشن کی ہیں. اچھا دیکھ سکتے ہیں. رکو. یہ جو 8 چیزیں ہیں دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے. دونوں کا محمول ایک ہونا چاہیے. دونوں کا زمان ایک ہونا چاہیے. دونوں کا مکان ایک ہونا چاہیے. دونوں کی فعلیت ایک ہونی چاہیے. دونوں کی قوت ایک ہونی چاہیے. دونوں کی اضافت ایک ہونی چاہیے. میرے خیال میں مثالیں دینا پڑیں گی تو بات بنے گی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حیرت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بحث کچھ لوگ پہلی بار پڑھ رہے ہوں تو مناسب ہوگا مثالیں دے دیجیے. کتاب دو تاکہ حاشیے سے اس کی مثالیں دیکھ لیں. ادھر ادھر. ہاں جی تعلیق کا نمبر 1 دیکھو نیچے. تو پھر وہ دیکھو بھائی وہ جس میں سب لوگ دیکھ سکیں. اچھا 3 نمبر ہے. اچھا جی. کیونکہ اتحاد شرط ہے. اس دلیل دے رہا ہے بھائی کیوں اتحاد شرط ہے. لو کانتا مختلفتین فی الموضوع. اگر دونوں کا موضوع الگ الگ ہو گیا لم تناقضا وہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیض نہیں رہیں گے. مثال کیا ہے؟ العلم نافع والجہل لیس بنافع. یہاں کیا کون سی چیز متحد نہیں رہی؟ موضوع. ٹھیک ہے نا. العلم نافع وہاں موضوع علم ہے. دوسرے قضیے میں جہل موضوع ہے. وقضا لو اختلافتا فی المحمول. دونوں قضیوں کا محمول ایک نہیں رہا تو بھی پھر ان کے درمیان تناقض نہیں رہے گا. مثال کیا ہے؟ العلم نافع والعلم لیس بضار. جو موجبہ ہے اس کا موضوع نافع ہے محمول نافع ہے. جو سالبہ ہے اس کا محمول لیس بضار ہے. اس کا محمول اور ہے اس کا محمول بدل گیا ہے. محمول سیم رہنا چاہیے.
वकज़ा अल ज़मान, दोनों का जमाना अगर बदल जाता है तो भी उन दोनों के दरमियान तनाकुज़ नहीं आना। तनाकुज़ ना रहने का मतलब यह है कि या तो दोनों साथ का हो जाएंगे या दोनों काज़ब हो जाएंगे। ठीक है ना? जब हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान तनाकुज़ नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि या तो दोनों साथ का बैठ जाएंगे या दोनों काज़ब हो जाएंगे। वकज़ा अल ज़मान, दोनों का जमान भी एक होना चाहिए, वरना फला तनाकुज़ा, तनाकुज़ नहीं रहेगा। जब तनाकुज़ नहीं रहेगा तो फिर दोनों साथ का हो सकते हैं या दोनों काज़बा। मिसाल क्या है? आल शम्सु मुशरिकतुन, ज़हन में क्या है जी? फिल नहार। आल शम्सु लैसत बिमुशरिकतिन, ज़हन में क्या है जी? फिल लैल। जमाना बदल गया है, दोनों साथ का हो गया है। सही। वकज़ा अल मकान, मकान भी दोनों कजियों का एक होना चाहिए। फला तनाकुज़ा, तनाकुज़ नहीं रहेगा अगर उन दोनों का जमान बदल जाता है। अस्सलातो सहीहतुन, ज़हन में है फिल मस्जिद है। अस्सलातो लैसत बिसहीहतिन, ज़हन में क्या है? गस्बी मकान, मकान बदल गया है ना, तो फिर दोनों कजिए ठीक है। अच्छा, कज़ा अल कुव्वत वल फ़ेल, अगर एक कजिए के अंदर निस्बत फेलियत की है तो दूसरे कजिए के अंदर भी निस्बत फेलियत की होनी चाहिए। एक कजिए के अंदर निस्बत कुव्वत की है तो दूसरे के अंदर भी कुव्वत की होनी चाहिए। अगर मुख्तलिफ हो जाते हैं तो फिर फला तनाकुज़ा। मसलन ज़ायदुन कातिबुन, जिनमें क्या है जी? बिल्कुल। ज़ायदुन लैसा बिकातिब, यानी बिल, दोनों सादिक हो गए। अच्छा, वकज़ा अल कुल वल जुज़, दोनों कजिए कुल और जुज़ में मुत्तहिद होने चाहिए। यानी अगर पहले कजिए में हुक्म कुल पे लगाया गया है तो दूसरे में भी कुल पे होना चाहिए। पहले कजिए में अगर जुज़ पे लगाया गया है तो दूसरे में भी जुज़ पे होना चाहिए। अल दारो मुज़लिमतुन, ज़हन में क्या है जी? एक कमरा। अदारो लैसत बिमुज़लिमतिन, ज़हन में क्या है जी? पूरा घर। घर के घर मसलन 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में से एक कमरा जो है वो रोशन है, बाकी घर के लाइटें जो है बंद है। तो ऐसी सूरत में आपके दोनों कजिए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि घर में अंधेरा है, ये भी कह सकते हैं घर में अंधेरा नहीं है, दोनों साथ का हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जब आपने कहा अदारो मुज़लिमतुन तो उस वक्त आपने एक घर के एक जुज पे हुक्म लगाया है। सिर्फ वो एक कमरा जो कि एक जुज है घर का, उस पे हुक्म लगाया है कि वो अंधेरा है। और जब आपने कहा कि अदारो लैसत बिमुज़लिमतुन, पूरे घर पर, तो पूरा घर वाकया ना मुज़लिमा नहीं। वकज़ा इज़ा इख्तलफता फिल, कहाँ है? शर्त में इख्तिलाफ हो जाए। एक कजिए में आपने जो हुक्म लगाया है वो हुक्म किसी और शर्त से मशरूत है, दूसरे कजिए में जो आपने हुक्म लगाया है वो किसी और शर्त से मशरूत है। दोनों की शर्त बदल जाए तो भी दोनों में तनाकुज़ नहीं रहेगा। जब तनाकुज़ नहीं रहेगा तो दोनों साथ का हो सकते हैं, दोनों काज़बा हो सकते हैं। लिहाजा तनाकुज़ के लिए क्या जरूरी है? पहले कजिए का हुक्म जिस शर्त से मशरूत है दूसरे कजिए का हुक्म भी उसी सेम शर्त से ही मशरूत होना चाहिए। अल इंसानु मुअज़्ज़बुन, ज़हन में है मासियत की शर्त पे। अल इंसानु लैसा बिमुअज़्ज़मिन, ज़हन में क्या है? इताअत की शर्त पे। अगर वो इताअत करता है इताअत की शर्त पे लैसा बिमुअज़्ज़ब है, मासियत की शर्त पे वो मुअज़्ज़ब है। शर्त बदल जाएगी तो दोनों साथ का हो जाएंगे। दो नकीज कब बनेंगे? जब शर्त एक ही रहे। इंसान मुअज़्ज़ब बिशर्तिल मसियत, इंसान लैसा मुअज़्ज़ब बिशर्तिल मासियत, तो शर्त एक ही रहे तो फिर तनाकुज़ आ जाएगा, एक साथ का एक काज़ब हो जाएगा। कज़ा इज़ा इख्तलफता फिल इज़ाफ़ते, आपने जो हुक्म लगाया है ना, इज़ाफ़त समझते हो? मुकायसा। ज़ायद जो है वो खालिद से ज्यादा ताकतवर है, ज़ायद अमर से कमजोर है। दोनों कजिए तुम्हारे साथ का है, ज़ायद का ताकतवर होना भी, ज़ायद का कमजोर होना भी। क्यों? इसलिए कि आपने
मुकैसा बदल दिया है, इजाफत बदल दिया है। जब कमजोर कहा है जायद को तो मुकैसा किसी और इंसान से दिया है, जब ताकतवर कहा है तो मुकैसा आपने किसी और से दिया है, दोनों साथ कौन है। तो आपका मुकायसा और इजाफत भी सेम रहना चाहिए। पहले कज़िये में आपने जिसके साथ उसका इजाफा और मुकायसा दे के हुक्म लगाया है, दूसरे कज़िये में भी सेम उसी के साथ ही इजाफत और मुकायसा दे के आप हुक्म लगाओ, तो फिर ये दूसरा कज़िया पहले की नकीज़ बनेगा। फला तनाकुज़ बैन कौलिना अल ज़ेबु कवियुन बिल इजाफा इला सालब। ज़ेब क्या होता है? भेड़िया। अच्छा, भेड़िया जो है वो ताकतवर होता है सालब के मुकाबले में। लैसा बे कवियन किसके मुकाबले में? असद के मुकाबले में। तो भेड़िया अगर उसका मुकायसा आप देते हो सालब से तो उससे वो ताकतवर है, उसका इजाफा और मुकायसा देते हो असद से तो उससे वो कमजोर है। इजाफत बदल गया है, दोनों कज़िये तुम्हारे सादिक हो जाएंगे। तो तकरीबन मेरे ख्याल 8 की गिनती पूरी हो गई है। इन मिसालों से कुछ मालूमात में इजाफा हुआ है जी। अच्छा, तो बात पलट के फिर वापस आ जाएगी उसी ग्राउंड में। हमने क्या कहा है कि ये कहने के लिए कि ये कज़िया इस कज़िये की नकीज़ है, जरूरी है इस दूसरे कज़िये के अंदर उस पहले वाले कज़िये की 8 चीजें इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। पहले कज़िये की 8 चीजें जो हैं इस दूसरे कज़िये के अंदर मौजूद होनी चाहिए, तो जाके इस दूसरे कज़िये को आप पहले कज़िये की नकीज़ कहोगे, वगरना ये दूसरा कज़िया पहले की नकीज़ नहीं कहलाएगा। इन 8 चीजों के साथ मजीद एक नामी चीज का इजाफा किया है मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि ने। वो कहते हैं इन 8 वहदात के साथ एक मजीद और चीज का इत्तेहाद भी जरूरी है। अगर वो सेम ना रही तो भी दूसरा कज़िया पहले का नकीज नहीं कहलाएगा। अच्छा, भी वो क्या चीज है? कहते हैं वो है वहदतुल हमल। ठीक है, हमल की हमारे पास 2 किस्में हैं, एक है हमल शाए, एक है हमल जाती। हमल शाए क्या है, हमल जाती क्या है? कहते हैं हमल शाए जाती दोनों का फर्क समझो। महमूल का इसनाद मौजू के, तवज्जो फरमाइए, मौजू का ज़हन में एक मफहूम होता है और मौजू का खारिज में एक मिस्दाक होता है। इंसान का ज़हन में मफहूम है, खारिज में इंसान का ज़ायद, इंसान का मफहूम नहीं, ज़ायद इंसान का मिस्दाक। ठीक है ना? मफहूम का ताल्लुक आलम ज़हन से है और मिस्दाक का ताल्लुक गालिबन, क्योंकि कुछ कुलियात ऐसे भी हैं जो कुलियात ज़हनिया है, उनके मसादिक भी ज़हनी होते हैं, लेकिन गालिबन मसादिक आलम खारिज में होते हैं, लेकिन मफाहिम सबका ज़हन में होता है। हर लफ्ज़ का मफहूम ज़हन में होता है, मसादिक अगर वो मफहूम कुल्ली ज़हनी है तो उसका मिज़दाक ज़हन में होगा, कुल्ली खारिजी है तो उसका मिज़दाक खारिज में होगा। तो गालिबन कुलियात के मसादिक कहाँ होते हैं? अच्छा, तो मैं जो मिसाल देने लगा हूं, क्योंकि ये मिसाल ज्यादा आसान है, उस कुली की मिसाल देने लगा हूं जिसका मफहूम ज़हन में, मिज़दाक खारिज में। तो इंसान का मफहूम ज़हन में, खारिज में ज़ैद बकर खालिद लोग तशरीफ फरमा है, कौन है? इंसान के मिज़दाक हैं, खारिज में मफहूम नहीं होता। ठीक है ना? खारिज में कौन होता है? मिज़दाक होता है। ठीक है, महमूल का इसनाद या मौजू के मफहूम की तरफ जाता है या उसके, ठीक है ना? मिसाल देता हूं, अल इंसानो कुल्लियुन, कज़िया ठीक है या गलत है? कुल्लियुन महमूल है, अल इंसान इसका, इस महमूल का इसनाद किधर जा रहा है? मौजू के मफहूम की तरफ या उसके मिज़दाक की तरफ? कैसे पता चला आपको? क्योंकि कुल्ली जुज़ी होना मफहूम की शऊन में से आए।
मफहूम को तकसीम किया था आपने कुली और मिस्दाक कुली जुज़ी की तरफ तकसीम नहीं होता। कुली जुज़ी कौन होते हैं? मफाहिम। अच्छा, तो ये महमूल इसका इस्नाद किधर पलट गया है? मौजू के। अच्छा, आल इंसानो आलिमुन, दूसरी मिसाल दे रहा हूं, जी महमूल का इस्नाद किधर जा रहा है? क्यों? क्योंकि आलिम होना इंसान के मफहूम की सिफत नहीं, इंसान के मिस्दाक की सिफत है। जो इंसान के मिस्दाक हैं वो आलिम और जाहिल होते हैं, ना कि इसका मफहूम आलिम और जाहिल होता है। तो ये महमूल किधर जा रहा है, इसरात किधर जा रहा है? बात समझ आ गई ना? अच्छा, तो अब टोटल करने लगा हूं बहस को। महमूल का इसनाद मौजू के मफहूम की तरफ जाए, इस हमल को कहते हैं हमल अवली। ठीक है, क्या बोलते हैं? हमल अवली। महमूल का इसनाद मौजू के मिस्दाक की तरफ जाए, इसे क्या कहते हैं? हमल शाए सनाई। अच्छा, अस्मा का तारफ हो गया ना? इस्तिलाह हो गया आपका? अच्छा, सदरुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नकीज निकालने के लिए जरूरी है क्या? जैसे वो 8 चीजों का इत्तेहाद तुमने कहा है ना, हमल का भी इत्तेहाद होना चाहिए। जो हमल इस कज़िये के अंदर इस्तेमाल हुआ है दूसरे के अंदर भी वही सेम होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पहले के अंदर आपने इस्तेमाल किया हमल शाए सनाई, दूसरे में आप इस्तेमाल कर रहे हो हमल अवली, तो भी दूसरा कज़िया पहले की नकीज नहीं रहेगा। वाज़ेह हो गई ये बात? अच्छा, और उलमा ने सदरुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की बात को कबूल किया है। ठीक है, लेकिन सदरुद्दीन शिराजी साहब चूंकि बहुत मुतअखिर हैं और ये लेटेस्ट रिसर्च है, बाद में आई है, तो इसलिए इस नामी शर्त को या इस नामी इत्तेहाद को फिर उन 8 के साथ मुतअखिरीन ने इजाफा किया है। और कुदमा के दौर में ये तवज्जो नहीं थी हमल की इस दकीक तकसीम की तरफ, तो वो ये 8 वाहिदात बयान करके बात को तमाम कर देते थे। लिहाजा इस नए इजाफे के बाद आज आप तनाकुद निकालने के लिए क्या करोगे? वहां इख्तिलाफ के साथ साथ इन 9 चीजों में इत्तेहाद रखना है। मुतवज्जे होगा जी? ये जो कुछ हमने बयान किया है ये मंसूब है कुदमा उलमाए मंतिक की जानिब। अबू नसर फराबी एक मंतकी गुजरा है, उसने कहा भाई ये जो 9 वहदात की तुमने शर्त लगाई है या 8 वहदात की तुमने शर्त लगाई है ना, 8 वहदात की शर्त जरूरी नहीं है, एक ही वहदत काफी है। तो जो है उसी बात को थोड़ा बिगाड़ने लगा हूं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि बात वही है। थोड़ा रास्ता इधर उधर गर्दिश करने से जो है वो जरा टांगे सीधी हो जाएंगी ना तुम्हारी। कुछ बातें समझाने के लिए होती हैं, कुछ बातें आपकी फिक्र को तहरीक दिलाने के लिए होती हैं। तो फराबी साहब कहते हैं भाई 8 वहदात की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही वहदत काफी है, और वो है वहदतुल निस्बत। जो निस्बत पहले कज़िये के अंदर है दूसरे के अंदर भी वही सेम ही निस्बत होनी चाहिए। ठीक है? हाँ, अलबत्ता इन 8 में से अगर एक चीज भी उन दोनों की सेम नहीं रही तो जो दूसरा कज़िया है उस पहले के साथ इसकी निस्बत पहले की निस्बत की गैर हो जाएगी। तो जो है मैं लफ्ज और आसान बना देता हूं। वो कहते हैं कि वहदत एक ही काफी है। वो क्या है? वहदतुल निस्बत। जो निस्बत पहले कज़िये के अंदर है सेम वही निस्बत होनी चाहिए दूसरे कज़िये के अंदर, लेकिन दूसरे कज़िये के अंदर इस पहले वाली निस्बत को सेम करार देने के लिए जरूरी है क्या? कि 8 चीजें मुत्तहिद हों, क्योंकि इन 8 में से अगर एक चीज भी
पहली निस्बत के अंदर हो दूसरी के अंदर ना हो तो दूसरी वाली निस्बत पहली की सेम नहीं रहेगी। तो वहदतुल निस्बत काफी है, मगर निस्बत की वहदत को बचाने के लिए इन 8 चीजों का इत्तेहाद मलूज रखना होगा। यानी वहदतुल निस्बत तब हासिल होगी जब ये 8 वहदात होंगी। वही बात बात तरफ के वही आ गई, ठीक है ना। अच्छा जी, देखते हैं जी फिर आगे क्या कहां तक जाती है गुफ्तगू। वल इत्तेहादो, नकीज निकालने के लिए कुछ चीजों में इख्तिलाफ करना होगा, और वो जो चीजें इख्तिलाफ वाली हैं वो बयान होने के बाद अब वो इत्तेहाद वाली चीजें बयान करता है मुसन्निफ। वल इत्तेहादो, और जरूरी है ये दूसरा कजिया इत्तेहाद रखता हो पहले कजिए के साथ, फीमा, उन चीजों में, अदाहा, जो हमने अभी इख्तिलाफ वाली बयान की है ना, अदाहा, उनके अलावा जो बाकी चीजें हैं ना उनमें इत्तेहाद चाहिए। अच्छा भी वो इख्तिलाफ वाली के अलावा जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, कहता है आए, अब आए तफसीरिया के साथ लेके आए। आए युश्तारा तो फिल तनाकुज़ इत्तिहादुल कजियतैन, कजियतैन कौन कौन, असल और नकीस। अच्छा, इन दोनों के अंदर इत्तेहाद चाहिए, फीमा, उन चीजों में, अदल उमूर अस्सलासा अल मज़कूरा, जो पहले 3 बयान हो चुकी हैं जिनमें इख्तिलाफ आपने करना है, आनी अल कम वल कैफ वल जिहद, इन 3 के अलावा बाकी चीजों में इत्तेहाद चाहिए। और वो कौन सी हैं, वक़द ज़ाबतू हाज़ल इत्तिहादा फी ज़िम्निल इत्तिहाद फी उमूरिल समानियाते, 8 चीजों में उलमा ने जब्त करके ज़ाब्ता तरीके से, बज़ाब्ता तरीके से इस इत्तिहाद को बयान किया है। काला काइलुहुम फी अश्शेर अल फारसी, फारसी के शेर के अंदर इन 8 वहदात को उन्होंने जब्त किया है या नज़म किया है। दार तनाकुज़ हश्त वहदत शर्त दान, तनाकुज़ में 8 चीजों की इत्तेहाद की शर्त दान का मतलब समझना, 8 चीजों में इत्तेहाद समझना, यानी कहना यह चाहता है कि तनाकुज़ निकालने के लिए 8 चीजों में मुत्तहिद होने की शर्त को मालूम करो। और वो क्या है, नंबर 1 वहदत मौजू व महमूल व मकान, गिनती भी करते जाओ यार, वहदत शर्त व इजाफा जुज व कुल कुवत व फेल अस्त दार आखिर, दार आखिर का क्या मतलब, आखिर और जमान नहीं पढ़ना है इसको। दार आखिर का मतलब यह है कि उन 8 के आखिर में जो आखिरी शर्त है, आसन तुम। अच्छा जी, 8 वहदात पहुंच गई हैं, जोजो को लेकर ना, जोज और कुल को एक शुमार किया है, कुव्वत और फेल को भी एक शुमार किया है, जमान अलग है, मकान अलग है। तो इस तरतीब से 8 बराबर बनती हैं। इत्तेहाद वाली शरात पहुंच गई हैं। वक़्त के अंदर गुंजाइश है कि अगला नुक्ता दर्स का बयान किया जाए। अभी तो अच्छा जी, पौने 12 पौने 12 का मतलब एक तमाम कर दिया जाए, 15 मिनट है, टाइम है 15 मिनट है। अच्छा, सलवात पढ़े ना एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुसन्निफ कहता है कि मरहला वाइज हमने क्लास बंदी की है, मुफरदात, फिर शख्सिया कजिया, फिर मैसूरात, फिर मुवज्जह। मुसन्निफ कहता है जो कजिया मुवज्जह है ना, हाँ मुवज्जह है, इसमें कुछ तफसील है। हम चाहते हैं कि मुवज्जह के मुताल्लिक इस तफसील को हम आपसे शेयर करें, बयान करें, ताकि वो इबहाम और इजमाल खत्म हो जाए। अच्छा, और ज़हन में रहे कि ये जो नुक्ता हम बयान करने लगे हैं ये मुख्तसर है सिर्फ मुवज्जह के साथ,
क्या तफसील है? कहते तफसील ये है कि हमने कहा था नकीज़ो कुल शैइन रफ़उहु, तो जिहाद में जब हम आते हैं तो कुछ जिहाद ऐसी हैं कि एक जिहाद दूसरी जिहाद के साथ जमा नहीं हो सकती, और कुछ जिहाद ऐसी हैं जो दूसरी जिहाद के साथ जमा हो सकती है। तो जो है जो जिहाद दूसरी जिहाद के साथ जमा हो सकती है ये राफे नहीं हो सकती। जब राफे नहीं हो सकती तो ऐसी दो जिहाद अगर आप ले आते हो कि जो आपस में जमा हो सकती हैं, उनमें से एक असल कज़िये के साथ दूसरी आप जिहाद आप नकीज के साथ लगाओगे, तो ये दूसरी वाली जिहाद चूंकि पहली के साथ जमा हो सकती है, तो जो जमा हो वो राफे नहीं होती, और नकीज निकालने के लिए जरूरी है क्या? नकीज कुल शैइन रफ़उहु। तो ऐसी सूरत में दूसरा कज़िया पहले की नकीज नहीं कहलाएगा। तो जिहाद के अंदर यानी मुवज्जहात के अंदर नकीज निकालने के लिए आपने असल कज़िये के अंदर नकीज जो जिहाद इस्तेमाल की है, जब इस असल की नकीज निकालोगे तो नकीज वाले कज़िये के अंदर आपने वो जिहाद इस्तेमाल करनी है जो इस पहली जिहाद के साथ जमा नहीं हो सकती, और नकीज का कानून यही है कि वो जमा नहीं होती। ठीक है ना? जब जमा नहीं होती, जो चीज जमा नहीं होती, जब वो आएगी तो वो इसके लिए क्या हो जाएगी? राफ हो जाएगी। ठीक है ना? जो चीज जमा ना हो वो जब आएगी तो इसको रफा कर देगी। ठीक है ना? तो अब आपने फिर जिहाद में नजर दौड़ा के वो जिहाद आपस में आपने मुआजना करनी है कि जो एक दूसरे के साथ जमा नहीं होती, ताकि आप नकीज़ैन के इस्तेमाल में वो जिहाद इस्तेमाल कर सके। तो आपको फिर देखना होगा कौन सी जिहाद किस जिहाद के साथ जमा नहीं होती। बात हो रही है बात? मुसन्निफ कहता है मैंने आप लोगों की सहूलत की खातिर बतौर मिसाल 2-3 जिहाद यहाँ बयान किए हैं जो एक दूसरे के साथ जमा नहीं होती। ठीक है? कहता है उनमें से पहली जिहाद जो है वो है जरूरत और इम्कान। ठीक है? जरूरत और इम्कान। इम्कान का क्या माना है? मुमकिन है। होना ना होना बराबर है। हाँ जो बात जो यानी मामूल जो है मौजू के लिए उसका सल्ब होना भी मुमकिन है और उसका उस पे अमल करना भी दोनों और जरूरी नहीं है उसमें। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है को उर्दू में अरबी में तर्जुमा करो। आसान। ठीक है ना? मुख्तसर और मुफीद। पहुंच गई ना बात? इम्कान का माना होता है साल बोल जरूरत। इधर क्या है? साल बोल। इम्कान का तर्जुमा क्या है? इसका मतलब इम्कान राफ़े है जरूरत के लिए। ठीक है ना? अब थोड़ा आप हैरत में बैठे हो, मैं इसको जो है वो हैरत को दूर कर देता हूं। जब जरूरत वाली जिहाद लगाई जाती है ना, अगर कजिया है मसलन मूजबा, तो मूजबा कजिया में आप जब जरूरत लगाते हो ना, तो मूजबा का जो सालबा है मसलन जायदुन आलिमुन बेल जरूरत, तो अब इसका सालबा क्या है? जायदुन लैसा बे। जब जरूरत लगेगी ना, अगर इजाब के साथ जरूरत लगेगी तो जिस महमूल के इजाब के साथ जरूरत लगेगी उस महमूल के साल्ब पर क्रास लग जाएगा। जब साल्ब पर क्रास लगेगा तो मतलब ये होगा कि इस महमूल को साल्ब नहीं किया जा सकता। अल इंसानो नाते कौन बेल, आप इसका साल्बा ले आओ। अल इंसान लैसा बे नाते पर इम्कान लगेगा या सल्बे जरूरत लगेगा? सल्बे जरूरत का क्या मतलब है? इम्कान है, मतलब ये कि वहां क्रास लगाओगे कि उसको आप साल्ब नहीं कर सकते हो, कि साल्ब करना मुमकिन है। अल इंसानो लैसा बे नातिक, नातिक को इंसान से साल्ब करना मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। आसान था। अच्छा, तो जब जरूरत लगाई जाए ना,
तो ये एक मिसाल दी थी हमने उसने ना कि इम्कान जो है ये इम्कान की मिसाल ऐसे है जैसे कजिए की मिसाल ऐसे है जैसे परिंदे के दो पर होते हैं, जी ठीक है ना। जी परिंदे के दो पर होते हैं, तो हमने एक पर का नाम इजाब, दूसरे का नाम सल्ब ठीक है ना। तो कजिया जो है या मुजबा इस्तेमाल होता है या जिस कजिए में, अब जिस कजिए का ध्यान जाएगा या आप इजाब की तरफ या जिस कजिए में आप जरूरत लगा देते हो ना, जी दूसरा पर जो है उस पर क्रॉस लगा दिया जाता है। जी अगर आपने इजाब वाले पर पे जरूरत लगा दिया है तो इसका मतलब यह है कि इस महमूल का होना जरूरी है, तो अब सल्ब करना जायज नहीं रहेगा, जी ठीक है ना। जी अगर सल्ब जरूरी है तो फिर इजाब उस पर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, जी जबकि इम्कान जो है उसके दोनों पर जो है एक साथ चलते हैं। जी जी वाज़ेह हो गई बात। जी तो जरूरत में आप दूसरे पर को क्रॉस कट लगा देते हो, जी और इम्कान जो है वो दोनों पर एक साथ लेके, चलता है ठीक है ना। जी तो चूंकि इम्कान के दोनों पर बराबर होते हैं, जरूरत एक पर के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरा पर उसका नहीं होता। जी अब अगर आप जरूरत लगाओगे मुजबा कजिए में, तो इसका मतलब यह है कि महमूल जो कि मुजबा है, इस महमूल का होना जरूरी है। जिस महमूल का होना जरूरी हो उसका सल्ब नामुमकिन होता है, जी ठीक है ना। जी नामुमकिन, लफ्ज ना जो है वो नामुमकिन है। जी बाजी हो गई ना बात। जी। सल्ब नामुमकिन है, जी तो वहां आप सालबा के साथ फिर इम्कान लगाओगे तो वो इम्कान इस जरूरत के लिए क्या हो जाएगा, राफ या नकीज हो जाएगा। मसलन मैं अभी आपको देख सिद्क और किस मुआजना करके देता हूं। कुल्लो इंसान नातिक बिल जरूरत कजिया साथ का है काज भाई। अच्छा, अब इख्तिलाफ करो काम का कजिया बनाओ, क्या बनेगा। बाज़ुल इंसान लैसा बिनातिकिन बिल इम्कान अल आम, बाज इंसान का नातिक ना होना मुमकिन है। झूठ सिद्क का काज़िब है। बाज इंसान का नातिक ना होना मुमकिन है। अकल तो है ना, बस अकल है तो फिर इंसान है, नातिक है। दूसरा कजिया जो है वो साथ का काजबा है। बाज़ुल इंसान लैसा बिनातिक बिल इम्कान अल आम, बाज इंसान का नातिक ना होना मुमकिन है। बाज इंसान का नातिक ना होना अकल मुमकिन समझती है, फिर कहां से हो जाएगा, क्योंकि तुम कह रहे हो मुमकिन है जबकि बिल वाकई मुमकिन नहीं है, तो फिर कहां से हो गया ना। अच्छा, तो इम्कान साल पर जरूरत, उधर जरूरत, तो साल पे जरूरत की नकीज है। दो जिहात मिल गई ना। मैं बतौर मिसाल नमूना, क्योंकि उसने नमूने की 2-3 दिए हैं। अच्छा, अब आ जाओ दबाम। कहते हैं दबाम के लिए राफे है फेलियर। दबाम के लिए क्या राफे है। दबाम का क्या मायना होता है, 3 जमानों में इस्तिमरार, ठीक है। अगर कोई महमूल मूजब है तो मतलब ये होगा कि इस महमूल का इस मौजू के साथ इत्तेसाफ तीनों जमानों में मुस्तमिर रहेगा। कुल्लू हबशी अस्वद बिल तमाम, तो बिल तमाम ने क्या कहा है कि ये महमूल तीनों जमानों में बिल इस्तिमरार हबशी के लिए साबित है, ठीक है ना। फेलियत क्या है, फेलियत का मतलब होता है किसी एक जमाने में हो, किसी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसी को आप इख्तिलाफ करो इस कज़िये का। कुल्लु हबशी अस्वद, क्या आएगा इसकी नकीज क्या आएगी। बाज़ुल हबशी लैसा बे, कुलिया का जुजिया हो जाएगा, मुजबा का सालबा। बाज़ुल हबशी लैसा बे अस्वद बिल फेल, ठीक है ना। यानी 3 जमानों में से किसी एक जमाने में बाज हबशी अस्वद नहीं है।
कस्ब है। बात तो सही है। ये सही। तो सच है। बाद हबशी से मुराद हबशी की जो डेफिनेशन है वो स्या फार्म से की है, ना कि हबस का रहने वाला, ठीक है ना। हबशी की जो डेफिनेशन है वो स्या फार्म, यानी जिनको अल्लाह ने नेचुरल तौर पे इस फार्म में पैदा किया है उसको हबशी कहते हैं, ना कि हबशी से मुराद ये कि वो हबश की खित्ते में रहने वाला। तो खित्ते में रहने वाले गोरे काले सब होते हैं। तो ये दूसरा साथ का नहीं आता कभी? बाज लहबशी लैसा बेअसवद, बाद ये भी साथ का है। बाद हबशी बिलफेल हाँ, असवद नहीं है। नहीं है। मसलन एक हबशी ने दूसरे से शादी की है, वो जो हबशी नहीं है तो उसके औलाद यकीनन असवद नहीं होगी ना। हबशी की डेफिनेशन क्या है? जी, हबशी की डेफिनेशन क्या है? हबशी के उसकी कौम हबश है, उस कौम में से ना, हो, ना। हम उसको हबशी कहेंगे। ना 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 कौमियत है, ना उनका जो है वो नेशनलिटी है। उसके हबशी का माना है सियासा। बास या फाम सिया नहीं है। फिर हम ये ना कहें ना किबला के बाज सिया फाम सिया नहीं है। हाँ, जब हम फकत उनको महदूद कर रहे हैं कि फकत सिया फाम है, तो दूसरी बात कहने की जरूरत भी नहीं है। फिर चलो तो ये मिसाल बदल, अगर इस मिसाल में आपको डाउट आ रहा है या इसकी तदबीक ठीक नहीं हो रही है तो एक और सही मिसाल लेते हैं, क्योंकि मिसालें जो होती हैं वो मुअर्रिफ होती हैं, यानी चीज़ों को पहचानने का या समझने के लिए वसीला होती हैं। मिसाल बदल देते हैं भाई आपसे, इजाजत है ना। कुल्लो फलाकेन मुतहर्रिक, ठीक है, बिल दमाम, ठीक है। नकीज निकालो। बाजुल फलक लैसा बे मुतहर्रिक बिल फेल, ठीक है। अब कौन सा फलक है कि जो इस वक्त बिल फेल मुतहर्रिक नहीं है? कोई नहीं है, ठीक है ना। क्या मत कहते नहीं रुकेंगे। तो जब तक ये निज़ाम लपेट नहीं दिया जाता तब तक ये हरकत में ही रहेंगे। अल्लाह का निज़ाम जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ जो नुक्ता समझाना चाहता हूं उसको फोकस करो। दवाम का माना होता है इस्तिमरार, फेलियर का माना क्या होता है? तीन जमानों में किसी एक जमाने में, तीन में से किसी एक जमाने। अगर वो मुजबा है तो तीन में से किसी एक में मुजबा होगा, अगर सालबा है तो फिर तीन जमानों में किसी एक जमाने में सालबा होगा, ठीक है ना। तो आप कजिया मुजबा लेकर आए हो और मुजबा उसको दवाम की जिहाद आपने लगाई। जब दवाम की जिहाद लगाई तो आप कहना ये चाहते हो कि हरकत का महमूल बिल इस्तिमरार फलक के लिए साबित है, तीनों जमानों में बिल इस्तिमरार साबित है। जब तीनों जमानों में बिल इस्तिमरार, इस्तिमरार को फोकस करो, इस्तिमरार के साथ तीनों जमानों में साबित है, तो फेलियर का अब इसका आप सालबा निकालोगे। जब सालबा निकालोगे तो सालबा को आप फिर मुकैयद करोगे किस जिया से? फेलियत के साथ। तो फेलियत क्या कहती है कि हरकत का सालब बिल फेल किसी एक जमाने में है, हरकत मसलूब है बिल फेल, बिल फेल यानी वाक़िअन बिल फेल किसी एक जमाने में मसलूब है। तो हरकत को सल्ब कर देना किसी एक जमाने में ये नक्ज़ है इस्तिमरार का, ठीक है ना। किसी एक जमाने में हरकत का ना होना ये नकीज है इस्तिमरार हरकत का, ठीक है ना। इस्तिमरार यानी दवाम। तो लिहाजा दवाम के लिए राफ़े क्या है? फेलियत। तो जब दवाम की जिहत की नकीज निकालेंगे तो उसके साथ हम कौन सी जिहत लगाएंगे? फेलियत की। वल नकीजो लिल ज़रूरियत इला आखिर ही, यानी बाकी बात मतन में देख लेना। एलम, आपको मालूम होना चाहिए, अन्ना नकीज़ा कुल्ले शैइन रफ़उहु, शय की नकीज क्या है? जो रफ़उहु उस शय को रफ़ा करे, वही रफ़ा करने वाली ही उस शय की नकीज होती है। फनकीजुल कज़ियते अल्लती हो के मफीहा बेज़रूरतिल इजाब, वो कज़िया जिसमें हुक्म लगाया गया है किस चीज का? बेज़रूरतिल इजाब, महमूल के इजाब के जरूरी होने का, अविल सल्ब या महमूल के सल्ब के जरूरी होने का, यानी महमूल का साबित होना जरूरी है या महमूल का मसलूब होना जरूरी है।
ہوا قضیتن ہو کے مفیہا، ہوا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ نکیز کی طرف، اور نکیز القضیات، ایسے قضیے کی نکیز ہوا. اب ہوا کی ضمیر کا مرجع ذہن میں آیا ہے؟ لفظ ایسا ہے بول گیا ہوں چونکہ درمیان میں یہ لمبی لائن کا ترجمہ جو ہے اب ریپیٹ نہیں کر سکتا ہوں. ہوا وہ نکیز کیا ہے ایسے قضیے کی؟ ہوا قضیاتن، ایسا قضیہ ہے ہو کے مفیہا، جس قضیے میں حکم لگایا جائے بے سالب تلک ضرورت، اسی ضرورت، کس ضرورت؟ جس ضرورت کا آپ نے حکم لگایا ہے پہلے قضیے میں، نکیز ہوگی اس قضیے کی وہ والا قضیہ جس میں حکم لگایا جائے اسی ضرورت کی سالب کا. اچھا بس سالب کل ضرورت ہوا امکان طرف المقابل، اور سالب ضرورت جو ہے، سالب ضرورت ہوا عین و امکان، یعنی سالب ضرورت بے عین ہی امکان ہی تو ہوتا ہے، یعنی سالب ضرورت کا دوسرا نام امکان طرف المقابل. ایک طرف کا آپ نے، ایک طرف کو آپ نے ضروری کہا ہے تو مقد مقابل کی طرف کو امکان. اچھا فنکیز و ضرورت الایجاب ہوا امکان السلب، بنکیز و ضرورت السلب ہوا امکان الایجاب. ٹھیک ہے. ونکیز الدوام سلب الدوام، اور سلب الدوام کو لازم ہے فعلیت. دوام کی نکیز سلب الدوام، اور سلب الدوام کو لازم ہے فعلیت. کیسے لازم ہے یہ نقطہ کل بیان کریں گے، پھر اس کی تطبیق دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد